Hello, everyone. Welcome again my set theory class where I was define a two session about the set theory, type of sets, and operation on set and Venn diagram. So in this class, I revise all these things again and discuss some theories part in this session. So now start in the term of revisions. Like set theory is what? Set theory is a collection of well-defined objects. It uses the same characteristics in all elements and show a simple same thing in a braces a set. So representation of a set in two form. First is roster form. Second is set builder form. Roster form define all the elements in terms of in braces and use in the comma. So all the elements of set in a roster form defined through a comma and braces. There are some example of the roster form I define is the last term is also defined when we use a mathematics. So in mathematics is a m is coming a two time, a coming two time. So I use only one m in a set because a single element entry in the set. So हम वहाँ पे same elements repeat नहीं करते हैं. And a set builder form is property form where we define the what is the property behind of the elements, just like in a even natural numbers, real numbers, whole numbers. That is all the properties. Yeah, some is the characteristics which define the how is the elements are the same. So here I define in term of self builder form. Last time I defined also a type of set. Type of set in the term of the empty set where is no any element in the set is called via empty set. So and singleton set where the single element is a finite set where we count the elements, that is a finite set. Infinite set where we we did not count and listed the elements of set is infinite set. Again, equivalent set and an equal set. Equivalent set, two finite set A and B are equivalent if their cardinal number are same. Cardinal number means there is number of elements are same but maybe possible elements are different. So that are equivalent set. When the elements are the same and the count of the elements are same, cardinal numbers of the set are the same, that is called equal set. In this session I also last session I also define as a subset is what um, is a part of the set is called be a subset. Like an example, a is a subset of b, that means a elements also occur in set b. So one is subset and another one is a superset. Properties of set I also define as a property a subset is b and a b subset is a c. So that's mean a subset of c. And if you identify the how many subsets of the set finite set, so we use a single formula 2 to power n. N is a number of elements in the set, so 2 power n. Again, the type of the subset is proper subset, universal set, power set is defined here. So in the term of the proper set, A is a subset of B, but A is not the equal of the B. That is a proper subset. Universal set, when the set contains all the set under the consideration is superset of each given set. That is a universal set. Universal set means when the all subset is belong to a single set is called that single set is called universal set. So in a subset, I define also a question how to identify the value of m and n. That's mean is how many of subset of the particular set. And in the term, we I also solve this question and identify n its value is 3 and m value is 6. Some practice problems I given there. Hopefully you all be done. So next we move. Two main operation of the subset is the union and intersection. Union means when we combine all the elements of two sets, that is union. In logical form I also define when the term of the union we define, that is we use or. Okay, so we use or.
Next is the intersection. Intersection I define when the common element occur in both set, just like an A B, that is term is intersection. Intersection in logical form we define through a AND. And last time I also defined the exam through a example. You also see there. Is a set complement is what our complement. That means not A. It's not a particular set. That means कि अगर कोई भी A सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा जो A के अंदर एलिमेंट्स नहीं है वो. तो हम यहाँ पे डिफाइन करे थे कि व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. ये तो लास्ट भी डिफाइन हुआ था. सेट डिफरेंसेस भी मैंने बताए थे. A माइनस बी, दैट मीन्स A के एलिमेंट B से माइनस हो रहे हैं तो जो भी A में एलिमेंट्स आपके बच जाते हैं उसको हम राइट करते हैं. इज ऑल्सो डिफाइन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. इसका कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ डिफाइन किया था. नाउ लास्ट इज द मेन टॉपिक था जो हमारा वेन डायग्राम का, जिसको हम टोपोलॉजिकल एरियाज या एक सर्कल फॉर्म में दिखाते हैं. दैट इज अ वेन डायग्राम थ्रू अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल. यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन को, हाउ टू डिफाइन द इंटरसेक्शन, हाउ टू डिफाइन यूनियन, ये सब यहाँ पे शो किया था. हाउ टू डिफाइन A माइनस बी, हाउ टू डिफाइन B माइनस ए. और उसके अलावा कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सेट्स के बारे में बताया था कि जब हम when say that a group of set is exhaustive of another set is that their union is equal to the that set, तो that means the exhaustive set. जैसे अगर A यूनियन B के साथ जो भी एलिमेंट्स हैं वो C के इक्वल हैं, that means एग्जॉस्टिव सेट है. अगर आपके इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. यहाँ इस फिगर में आई डिफाइन द A माइनस बी की क्या लोकेशन होती है, A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A यूनियन B क्या होता है, B माइनस A क्या होता है, व्हाट इज हाउ टू डिफाइन द टर्म्स ऑफ द वेन डायग्राम. तो यहाँ पे ये पूरा डिफाइन किया गया था. इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे आपको डिफाइन करने के लिए हम A डेल्टा बी का यूज करते हैं. तो व्हाट इज ए डेल्टा बी. ए डेल्टा बी का मतलब होता है A माइनस बी यूनियन B माइनस ए. तो दैट इज अ पर्टिकुलर जो हमने ब्लू टर्म में डिफाइन कर रखा है, दैट इज अ सेट इज A डेल्टा बी. Disjoint set when both elements have no common element, that is called be disjoint set. Complement is a set I defined last time also, um, लास्ट पॉइंट आई ऑल्सो डिफाइन इज व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. तो सम यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है. एलिमेंट ऑफ A इज डिफाइन इन अ वाइट कलर एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डिफाइन इन द टर्म ऑफ द ब्लू कलर्स. सो कुछ क्वेश्चन थे जो वेन डायग्राम के बेस पे थे, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ डिफाइन भी किया था और सेम चीज़ यहाँ पे डिफाइन है. और यही इसी तरह से जो 3 सेट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किए थे कि हाउ टू सॉल्व दीज 3 सेट्स इन द सेट थ्योरी. कुछ आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थे रिगार्डिंग ना यूनियन, इंटरसेक्शन और A डेल्टा B माइनस ए. तो ये होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा और सॉल्व भी किया होगा. डिफाइन अ प्रॉपर्टीज. कुछ प्रॉपर्टीज भी मैंने डिफाइन की थी. व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हाउ टू डिफाइन, उसके भी यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था. हाँ, जो हमारा मेन था वो हमारा फंडामेंटल लॉज ऑफ द एल्जेब्रा ऑफ सेट था. आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्युनिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ था. तो इसको यहाँ पे हमें क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए मुझे फिर से बताना होगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था. तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डिज़ाइन किया है. तो सीधे हम वीडियो पे आ जाते हैं. तो डिफाइन हाउ टू प्रूव दैट आइडेम्पोर्टेंट लॉ. तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या चीज़ है. अगर आइडेम्पोर्टेंट लॉ की बात करें तो इफ ए बी एनी सेट हम मान लेते हैं, तो देन A यूनियन A इज इक्वल टू A एंड A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A. दैट इज अ आइडेम्पोर्टेंट लॉ. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हाउ टू बी प्रूफ और दिस लॉ थ्रू अ set theory. Through a set theory, how to define the A union A is represent A and A intersection is represented. So that is a प्रूफिंग टाइम. तो सो लेट एनी एलिमेंट x, जो हमको भी x एलिमेंट है उसको हम मान लेते हैं वो बिलोंग करता है A यूनियन A से. तो जब हम x बिलोंग A यूनियन A कहेंगे तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं. बिलोंग का मतलब है जो x एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट जो x है वो मतलब बिलोंग करा A यूनियन A से. तो मतलब ये है कि जो x है वो A में भी है और A यूनियन A दोनों में. तो हम उसको अलग अलग लिखते हैं. और हमें एक चीज यहाँ पे क्लियरली पता है कि यूनियन को हम और से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम जो यूनियन होता है वो और से रिप्रेजेंट करते हैं.
तो देखिए यहाँ पे दोनों इज एलिमेंट सेम हो गए, एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग ए, तो हम उसको क्या ले सकते हैं कि जो भी एलिमेंट है अगर दोनों से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है सीधे सीधे एक्स बिलोंग टू ए। तो इस तरह से हम ले सकते हैं कि ए यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये हमारा जो फर्स्ट है दैट इज द फर्स्ट, हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं और हम फिर से अगेन ये मानते हैं कि जो एक्स है वो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए को। अगर इस तरह के प्रूफ करने में हम दो साइड से प्रूफ करते हैं, एक एलएचएस से एक और आरएचएस से, और ये हम शो करते हैं कि दोनों सबसेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, एक्स बिलोंग टू ए फिर से हमने माना, और x बिलोंग टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू ए, मतलब हम दो बार लिख सकते हैं अलग अलग और बीच में और लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो और का साइन होता है दैट इज द यूनिवर्स का साइन होता है, तो x बिलोंग टू ए यूनिवर्स ए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं जो a है हमारा वो सबसेट होगा a यूनियन a का। तो देन आई राइट कि हम फॉर्म वन और टू इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, अगर दोनों ही सबसेट है फॉर्म इक्वेशन वन और टू का, तो हमारा क्या होगा, a यूनियन a इक्वल टू a हो जाएगा। दैट इज प्रूफ कि ए यूनियन ए हमेशा ए होता है। अब इसी तरह से अगर एडम पोर्टलैंड लॉ का दूसरी बात करी जाए कि ए इंटरसेक्शन ए कैसे हो सकता है, कैसे मतलब आपके इंटरसेक्शन ए होगा, क्योंकि बोथ एलिमेंट बोथ सेट आर द सेम, तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो भी सेम है, बट इन द टर्म ऑफ द प्रूफ करने के लिए अगर हम दिखाया जाए, प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना हो, तो लेट एनी एलिमेंट हम मान लेते हैं कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन a को, तो यहाँ पे देन द टर्म x जो बिलोंग करेगा वो a को भी करेगा, एंड क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो दैट वी यूज एंड, तो x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू a। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो x बिलोंग होगा वो a को ही करेगा, क्योंकि हम सिंगल दोनों बोथ टर्म इज a है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं a जो इंटरसेक्शन a होगा दैट इज अ सबसेट ऑफ a। देन अगेन हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फिर देन अगेन देखिए, देन अगेन हम यहाँ पे फिर से हम x को हम फिर मान लेते हैं, देन अगेन इज x बिलोंग टू, इफ x बिलोंग टू a, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू a को हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग a एंड x बिलोंग टू a। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a एंड बिलोंग टू a को हम इंटरसेक्शन के टर्म में ले सकते हैं, x बिलोंग टू a। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो a सबसेट है वो किसका है, a इंटरसेक्शन a का है। तो ये दूसरी इक्वेशन आपकी हो गई। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी शो दैट कि क्या होता है, हमारा जो a इंटरसेक्शन a है वो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये एक प्रूफ करने का तरीका है, हाउ टू यूज ऑफ द लॉजिकल टर्म्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, वो हम इस थ्योरी में साफ साफ देख रहे हैं। तो दैट इज वेरी क्लियर। नाउ सेकेंड इज लॉ इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, द इम्पिटीज ऑफ the empty set and universal set are the identity element of union and intersection respectively, or if A be any non-empty set then A union empty set is equal to A होगा and A intersection union is equal to A होगा। तो दो टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज द इंटरसेक्शन सेट एंड दूसरा इज द यूनिवर्स सेट। तो यूनिवर्स सेट की बात अगर हम कर रहे हैं, तो यूनिवर्स सेट की अगर बात हम यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे जो मेन आइडेंटिटी लॉ में कहा जाता है कि जो एक इम्पिटी सेट और यूनियन सेट में अगर कोई भी इसका यूनियन या इंटरसेक्शन होगा तो वो सेम सेट ही होगा। तो हम यहाँ पे भी क्या मान ले रहे हैं, जैसे अगर फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट में हम क्या मान ले रहे हैं, सो हमने यहाँ पे भी लेट एक्स बी एन एलिमेंट मान लिया। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ए यूनियन एम्पिटी सेट इक्वल टू ए कैसे प्रूफ हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट। तो एक्स बिलोंग हम करेंगे ए यूनियन एम्पिटी सेट से, तो ए यहाँ पे हमने लिखा ए बिलोंग ए यूनियन एम्पिटी सेट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स जो बिलोंग करेगा ए से, क्योंकि यूनियन लगा है तो और का साइन आएगा, और एक्स बिलोंग कर रहा है एम्पिटी सेट से, क्योंकि एम्पिटी सेट में तो कुछ होगा नहीं, तो दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए यूनियन एम्पिटी सेट सबसेट है ए का। तो ये एलएचएस साइड का हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का। अगर दूसरी तरफ से अगर हम फिर से माने कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए से, लेट एक्स बिलोंग टू ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू, देन एक्स जो हमारा बिलोंग करेगा वो ए से भी करेगा और एम्पिटी सेट से भी करेगा, क्योंकि हर एक सेट का एक एम्पिटी सेट सबसेट होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब और आ ही गया है तो एक्स बिलोंग करेगा आपका ए यूनियन एम्पिटी सेट से। तो हम यहाँ पे अगेन वी राइट दैट ए जो सबसेट होगा वो क्या होगा, ए यूनियन एम्पिटी सेट। That is again a second equation. So
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए होता है। तो दैट इज आइडेंटिटी लॉ, जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं द इंटरसेक्शन द एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो एक दूसरा जो हमारा है, दूसरा अगर हम सॉल्व करेंगे द सेम सेकंड कॉन्सेप्ट ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए, तो हम इसको फिर से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सेम हैज वी प्रूफ दैट, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन का टर्म है तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे अगर देखा जाएगा इंटरसेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग से लिखा जाए, तो यहाँ पे भी हमें सेम मानना होगा, लेट एक्स बी एन एलिमेंट सो दैट वी यूज। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हम दोनों टर्म से इसको करने की कोशिश करेंगे। सो एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन यूनियन, यूनिवर्स है तो एक्स बिलोंग करेगा आपका ए से भी, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो एंड लगेगा एक्स बिलोंग टू यूनियन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूनियन है एंड लगाया तो सीधे सीधे हम ए लिख सकते हैं, तो एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो एक्स बिलोंग टू डायरेक्टली टू शो दैट ए, यहाँ पे जो चीज़ है वहाँ पे हम एक्स बिलोंग टू। सो यहाँ पे भी हम सेम करते हैं, जैसे एक्स बिलोंग टू ए लिखा है, एक्स बिलोंग टू लिखा है, तो हम सीधे सीधे क्योंकि यहाँ पे एंड का साइन लगा है तो एक्स बिलोंग हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा अगेन जो हमारा जो एलएचएस साइड से अगर प्रूव कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन यूनियन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए का हो जाएगा। सो अगर हम अगेन ऐसे ही माने, अगर लेक्चर साइड से सॉल्व करें कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए से, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को। अगर एक्स कोई भी एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए से तो वो ऑफकोर्स दी यूनिवर्स से बिलोंग करेगा, तो लेकिन बीच में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू यू। ये हम ये देख के लिखते हैं कि राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना है या लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, तो उसके बिहाफ पे हम एंड और का साइन लगाते हैं। सो यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो ए इंटरसेक्शन आपका यूनियन हो जाएगा, एंड लग गया है तो यहाँ पे एक्स बिलोंग जो है यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन यूनियन का। तो दोनों बोथ ऑफ इक्वेशन आर, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स होता है वो ए होता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी सेट है और उसका इंटरसेक्शन हमें यूनिवर्स से निकालना है तो वो क्या होता है, हमारा ए होता है। तो यहाँ पे एक चीज समझने की बात होगी कि इम्पिटी सेट, जो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है, तो ऑफ कोर्स है वही उसी सेट के एलिमेंट्स जो होंगे वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे जो ये ए यूनियन इम्पिटी सेट का है वो ए है। तो ये एक आइडेंटिटी लॉ है कि जब भी किसी चीज का यूनियन होता है इम्पिटी सेट से तो वही सेट आता है, और जब भी कभी किसी चीज का इंटरसेक्शन होता है, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन होता है यूनिवर्स से, तो वही सेट हमें मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स से ही हर एक सेट होते हैं। यूनिवर्स सेट क्या होता है, ऑल द एलिमेंट अकर इन द पर्टिकुलर सेट, तो दैट इज कॉल्ड बी यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट से ही सारे सबसेट बने होते हैं। तो अगर यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, तो ए हमारा क्या कर रहा है, सबसेट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये एक आइडेंटिटी लॉ है जो डिफाइन करता है कि हाउ द सेट आर सेम इन द टर्म ऑफ द एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे ये हमारा जो चीज़ है ये यहाँ पे प्रूफ होती है। तो अब इसके जो अलावा जो आपके थोड़े से और भी लॉ हैं, जैसे अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव लॉ की, जैसे बात करें क्यूमुलेटिव लॉ, तो क्यूमुलेटिव लॉ कहता है कि ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए होगा। दैट इज आल्सो शो दैट कि ए यूनियन बी यूनियन ए ही होगा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए ही होगा, क्योंकि बोथ आर सेट द सेम। तो जब भी हमारे सेट्स को आप फ्रंट या बैक में लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यूमुलेटिव लॉ में भी यही चीज डिफाइन है। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर कभी आपके तीन सेट होते हैं तो तीनों सेट्स का जो यूनियन होता है उन दोनों की वैल्यू सेम आती है अगर हम सेट्स को इंटरचेंज करते हैं, और उसी तरह से इंटरसेक्शन में अगर हम चेंज करते हैं तब भी वैल्यू सेम आती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब पहले हमने क्या किया है, दो सेट्स का यूनियन किया, उसके बाद उन दोनों सेट्स के यूनियन के बाद तीसरे सेट्स का यूनियन किया, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें ए यूनियन
ब्रैकेट में बी यूनियन सी के मिलेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी सेम वही कंडीशन होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वही हमें क्या होती है, सेम इक्वल वैल्यूज मिलेंगी हमें जब हम दो अलग अलग का इंटरसेक्शन पहले करते हैं उसके बाद थर्ड से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस चीज को डिफाइन करता है कि अगर हम किसी भी तीन सेट को ले रहे हैं और उसमें दो अलग अलग साइन है यूनियन और इंटरसेक्शन का, तो हम अगर इसको ए यूनियन बी के बाद इंटरसेक्शन सी लिखते हैं तो हम अलग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज जो सेम होगी वो ऐसे होगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब सी का अगर हमने थोड़ा सा मैथ, अगर मैथ बड़ी है तो हमारा क्या है, सी का इंटू हो जाएगा पहले ए यूनियन बी से, ए से फिर उसके बाद सी से। तो ए यूनियन बी हो गया और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस तरह से जो वैल्यू होगी वो सेम मिलेगी। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी है और यूनियन इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा फिर ए का इंटरसेक्शन सी से होगा और यू कॉमन रहेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसको हमें डिफाइन करना होता है। कई बार हमें चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि कैसे है सॉल्यूशन कैसे होगा। सो डी मॉर्गन्स लॉ जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ए यूनियन बी का हरदम कॉम्प्लीमेंट्री, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन होता है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे होता है ये। इसको मैं एक डिफाइन करूंगा तो पहले, लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या है, कुछ एप्लीकेशन ऑफ सेट हैं जो हम कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी का, तो ए प्लस एन प्लस बी इज अ फॉर्मूला होता है जब हमारा इंटरसेक्शन एमपीटी हो, मतलब दोनों डिसजॉइंट सेट्स हो, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी वाला। जब लेकिन एमपीटी सेट जीरो नहीं होता है, मतलब एमपीटी सेट आप नहीं, ए इंटरसेक्शन एमपीटी सेट नहीं होता है, तो हम माइनस ए इंटरसेक्शन बी लगाते हैं। इसी तरह दो सबसेट में यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तीन सबसेट का फॉर्मूला अलग होता है, ए प्लस बी बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग तरीके से हम एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं विद द फॉर्मूले। अगर कभी भी आपको दो इक्वेशन दे रखी है, दो सेट्स दे रखे हैं, तो थ्रू आप फॉर्मूले आप सॉल्व कर सकते हैं। सो डिमॉर्गन्स लॉ को एक बार देख लेते हैं कैसे हमने डिफाइन किया है, हाउ टू बी प्रूव दैट डिमॉर्गन्स लॉ। अगर उसी तरह से जैसे हमें एक्स बिलोंग वाली बिलोंग की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी लेते हैं। अगर पहले टर्म को देखा जाए, क्योंकि दो चीज़ें हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के बाद ऊपर बात होती है, तो ए यूनियन बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही। तो हम फर्स्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि मैं वो जब भी हमें कोई भी थ्योरी प्रूफ करनी होती है तो हम एलएचएस टू आरएचएस प्रूफ करते हैं और ये शो करते हैं कि पहला एलएचएस जो है वो सबसेट है आरएचएस की, या फिर दूसरा जो सबसेट हम प्रूफ करते हैं कि आरएचएस सबसेट है एलएचएस के। तो हम यहाँ पे पहला ले लेते हैं एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। हम एलएचएस से ले लेते हैं कि एक्स जो बिलोंग करता है, जो एलिमेंट एक्स है वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री को। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जैसे ओपन कर लें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री को अगर बिलोंग कर रहा है तो नॉट बिलोंग करेगा किसको, ए यूनियन बी को। तो हमने यहाँ नॉट बिलोंग का साइन लिखा, जो बिलोंग होता है वो इसको कट कर देते हैं, दैट इज अ नॉट बिलोंग। क्योंकि बिलोंग का मतलब आप इसको अगर बिलोंग कर रहा है तो नॉट बिलोंग करेगा इसके उल्टे को, तो ए यूनियन बी को नॉट बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हम क्या ले सकते हैं, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे यूनियन लगा हुआ है और बात हो रही है हमारे नॉट बिलोंग की, तो यूनियन तो हमारा और होता है, लेकिन हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नॉट बिलोंग की बात हो रही है तो हम यहाँ पे एंड यूज करते हैं, और एक्स नॉट बिलोंग टू बी। तो हम कैसे कर सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है ए को तो एक्स बिलोंग करेगा कॉम्प्लीमेंट्री को, अगर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी को तो एक्स बिलोंग करेगा बी कॉम्प्लीमेंट्री को। क्योंकि एंड लग गया है इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये एक तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि जो पहला है एक्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन आपका सबसेट हो जाएगा ए सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं वाई की, एलएचएस आपका आरएचएस साइड से, सपोज दैट हम वाई बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री से, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो वाई बिलोंग कर रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट्री को बिलोंग कर रहा है, एंड क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा ही हुआ है एंड लगेगा, वाई बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट्री को। तो नॉट बिलोंग की कंडीशन करेंगे तो वाई बिलोंग करेगा आपका नॉट बिलोंग टू ए और वाई नॉट बिलोंग टू बी। अब क्योंकि यहाँ पे नॉट बिलोंग का कंडीशन है तो ये एंड कन्वर्ट हो जाएगा और में, तो और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यूनियन में आ जाएगा। तो वाई नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो हम यहाँ पे दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं जो सबसेट होगा हमारा, यहाँ पे हमारा जो सबसेट होगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री आपका सबसेट हो जाएगा ए यूनियन में। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आप देख रहे होंगे जो वैल्यूज आ रही हैं
जो वैल्यूज आ रही हैं वो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री आ रही है। तो इस तरह से डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो आपका है इसमें डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करने का वो सेम ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड वाला प्रूफ कर रहे हैं हम, एक्स बिलोंग करता है अगर ए इंटरसेक्शन बी से बी कॉम्प्लीमेंट्री से, तो एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से। तो ये डिमॉर्गन लॉ का जो दूसरा पार्ट है वो उस चीज़ को हम प्रूफ देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉम्प्लीमेंट्री है तो ए इंटरसेक्शन तो हम उसको नॉट बिलोंग के टर्म में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन है एंड होता है, लेकिन यहाँ नॉट बिलोंग की कंडीशन है तो एंड कन्वर्ट होकर और में आ जाएगा, और जैसे ही कन्वर्ट होगा तो एक्स नॉट बिलोंग है तो एक्स बिलोंग हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट्री से, एक्स बिलोंग हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट्री से। हम उसको और क्या ले सकते हैं, यूनियन ले सकते हैं। तो पहला आपका सबसेट ऐसे प्रूफ हो गया। अब हम राइट हैंड साइड से अगर दिखाएं तो राइट हैंड साइड से वाई आपका बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन से। तो सेम चीज़ हमने जैसे लास्ट टाइम में भी गई थी, हमने बिलोंग का टर्म में दिखाया और लगाया, जब नॉट बिलोंग करेंगे तो और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में और ये इंटरसेक्शन बन जाएगा और सबसेट आता सेम आएगा। सो फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो दोनों वैल्यूज हैं वो हमेशा इक्वल रहेंगी। तो इस तरह से जब हमें बिलोंगिंग वाला क्वेश्चंस करने होते हैं, लॉजिकल प्रूफ करना होता है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कहाँ पे चीज़ें बिलोंग करेंगी, कहाँ पे चीज़ें नॉट बिलोंग करेंगी। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ जो है, क्यूमुलेटिव लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, ये प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो हम इसको सिंपली वे में इस तरह से प्रूफ कर देते हैं, RHS टू LHS प्रूफ करने के लिए। सो जो मोस्ट प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो आपका पूछा जाता है कि वेन डायग्राम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे टू वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, थ्री वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो इस पे क्या है कि हमें सीधे सीधे एक स्टडी जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस फॉर्म में भी करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। जैसे एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 12 ने इकोनॉमिक्स लिया है, 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट पॉलिटिक्स, find the number of students who have taken politics but not economics, both are पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो लास्ट में जो मैंने एग्जाम्पल्स समझाए हैं तो वेन डायग्राम में, होपफुली उसके यहाँ पे ही ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको और भी नॉलेज गेन करने को मिलेगी। सो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा दो ही सेट पे है। क्लास में 60 बॉयज़ हैं, 40 बॉयज़ कार्ड खेलते हैं, 30 बॉयज़ कैरम खेलते हैं। तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा क्या होता है, सेंट्रिक पॉइंट होता है कि कॉमन चीज़ क्या है। क्योंकि यहाँ पे दो ही ग्रुप है, बॉयज़ का ग्रुप है, जो एक ग्रुप क्या कर रहा है, कार्ड्स खेल रहा है, और एक ग्रुप क्या कर रहा है, कैरम खेल रहा है। तो ये दो अलग अलग सेट हुए जिसके भी यहाँ पे अगर आप वेन डायग्राम से करेंगे तो आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं, इंग्लिश हिंदी और बोथ वाले। इसमें भी आपके क्वेश्चंस हैं, बोथ टी कॉफ़ी, ये भी दोनों पे क्वेश्चंस हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आई डिफाइन ऑल दिस थिंग थ्रू अ सोल्यूशन। ठीक है, जैसे सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेवन्थ क्वेश्चन में 3 मैगजीन्स की बात हो रही है, ए बी और सी। तो यहाँ पे जो मैगजीन्स की बात हो रही है तो ये 3 सेट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको 3 सेट्स पे भी क्वेश्चन को सॉल्व सिखाया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो होपफुली इस सेशन में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिलहाल यही पूरे होल इज द पार्ट ऑफ द सेट थ्योरी। इसके अलावा कुछ थ्योरी टर्म इज, अगर कोई भी चीज़ है जो नहीं समझ में आएगी तो वी ट्राई टू सॉल्व अगेन in our next session. Okay class, so thank you class for this session and hopefully आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और हम और से बेटर हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Try to keep learning and do practice more. Okay class, thank you so much.